Hello and welcome to Administration Wise. So this is gonna be part 5 of our PYQ based pointer series based on the June 2014 previous year question for the subject Public Administration. So without wasting much time, let us quickly start with our pointers. So very first point is the public administration is nothing but the study of men, material and method. ये कहना था फेरे मैक्विन का। लोक प्रशासन कुछ और नहीं बल्कि मनुष्य, सामग्री और विधि का अध्ययन है। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द लेटेस्ट फ्रूट ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ प्रैक्टिस। ये कहना था वुड्रो विल्सन का। प्रशासन का विज्ञान अभ्यास के विज्ञान के अध्ययन का नवीनतम फल है। वुड्रो विल्सन का एक वक्तव्य है। पब्लिक चॉइस थ्योरी हैज अटेम्प्टेड टू कंस्ट्रक्ट द थ्योरी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्म विद द कंज्यूमर एंड द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत ने उपभोक्ता और व्यक्तिगत प्रदर्शन के संदर्भ में सार्वजनिक संगठन के सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास किया है। बहुत सारे स्टेटमेंट बहुत बार रिपीट भी होता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से होते हैं हर साल। And this signifies the importance of this series, and you can also get this PDF from our Telegram channel Administration Wise, link of which you can visit via description box. And if you are truly following this series and loving this series, kindly like, share and subscribe. Moving further in this pointer series, the fourth point is about the 14th principle of the Henry Fayol is division of work, authority and responsibility, remuneration, unity of command, subordination of individual interest over the general interest, unity of direction, initiative, discipline, tenure of personnel, scalar chain, centralization, order, spirit de corps and equity. Fifth point is the theory and their characteristics. Trait theory, लीडर पोजेसेस सर्टेन इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। गुण सिद्धांत के अनुसार नेता में कुछ जन्मजात विशेषताएं होती हैं। स्किल थ्योरी, लीडरशिप इज सेंटर्ड ऑन द ह्यूमन कैपिटल। कौशल सिद्धांत, नेतृत्व मानव पूंजी का पर केंद्रित है। स्टाइल थ्योरी, टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड। शैली सिद्धांत कार्य उन्मुख और संबंध उन्मुख है। सिचुएशन थ्योरी, लीडर मस्ट अल्टर लीडरशिप बेस्ड ऑन द सिचुएशन। परिस्थिति सिद्धांत क्या है कि नेता को परिस्थिति के आधार पर नेतृत्व बदलना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल डेवलप्ड बाय शैनन ऑफ वीवर। संचार प्रक्रिया मॉडल शैनन और वीवर के द्वारा डेवलप किया गया था। क्या क्या है इसका प्रक्रिया? सबसे पहले सोर्स, देन इनकोडर, देन मैसेज चैनल, देन डिकोडर, देन रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। बेसिक प्रेमाइस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन गवर्नमेंट। नए सार्वजनिक प्रबंधन का मूल आधार अधिक लचीलापन और खुला सरकार है। थ्योरीज एंड देयर फीचर्स, Weber's bureaucratic model is internal accountability, public choice theory is self-serving bureaucracy, Taylorism is efficiency and economy, new public management is efficiency, economy and effectiveness, thinker and concept. Joseph M. Juran gave the concept of quality management. Peter Drucker is social ecologist. Joseph M. Juran को father of quality management भी बोलते हैं। Edward Deming is father of total quality management. Henry Fayol is the founder of management process school. Concept and their explanation. Endopragmatic is internally generated government toward the diffraction. Exopragmatic is impetus from outside. Orthopragmatic is semi-differentiated, mal-integrated. Diffracted is congruence of the aspiration and reality. Mayor in council form of government means the cabinet form of the government at the municipal level. मेयर इन काउंसिल सरकार का मतलब है कि नगर पालिका स्तर पर कैबिनेट सरकार है। एडवर्ड वेडनर इज द एडिटर ऑफ द बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एशिया। एडवर्ड वेडनर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के संपादक है। सेकेंड ARC के कुछ रिपोर्ट्स अगेन बार बार पूछा जाता है। 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस। सेकेंड रिपोर्ट इज अबाउट द अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, entitlement of the governance. 10th report talks about the refurbishing of the personal administration, the scaling new height. 11th report is about the promoting e-governance, the smart way forward. World Trade Organization deals with the trade negotiation with the which covers
goods, services and intellectual properties. It spells out the principle of liberalization, and it means the regular dialogue with the NGOs etc. with the aim of enhancing cooperation, and it comprises of 164 कंट्रीज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका एम है कि एक फ्रेमवर्क बनाना है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। इट डज नॉट रिजॉल्व द ट्रेडिंग डिस्प्यूट ऑफ द मेंबर कंट्री, यह सदस्य देशों के व्यापारिक विवादों का समाधान नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ IMF एज पर द डाटा ऑफ 2024 December is 191. The principal secretary of Prime Minister is administrative head of the PMO. प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख है। LK Jha committee has recommended to change the financial year from 1 January to 31st December and this was not accepted. ये दिया गया था 1984 में। LK Jha समिति ने वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बदलने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि RTI इज इनहेरेंट इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट मामले ने यह सुनवाई दी कि RTI भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। Juvenile Justice Set was adopted in the year 2000. Annual performance agreement should be signed between the departmental ministers and secretary of department detailing out the work to be done during the financial year. ये कहना था सेकेंड ARC का। विभागीय मंत्रियों और विभागीय सचिवों के बीच वार्षिक निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा हो। यह सेकेंड ARC का रिकमेंडेशन है। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1726। बलवंत राय मेहता कमेटी को 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। स्टडी टीम ऑन द पंचायती राज फाइनेंसेस was 1963, the Ashok Mehta Committee 1977, the GVK Rao Committee 1985. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना is concerned with the capacity building of the elected representative of पंचायती राज institution. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना है। States covered under the पेशा are आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। टोटल 10 states are covered under पेशा। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज डेड, लॉन्ग लिव डिजिटल एरा ऑफ द गवर्नेंस। ये कहना था पैट्रिक जॉन डार्लेवी का। नया सार्वजनिक प्रबंधन खत्म हो चुका है, शासन का डिजिटल युग अमर रहे। The definition of public administration as a socially embedded process of collective relationship, dialogue and action to promote human flourishing for all is at outcome of the Minobrook 3। सभी के लिए मानव समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक संबंध, संवाद और कार्रवाई की सामाजिक रूप से अंतर्निहित प्रक्रिया के रूप में पब्लिक प्रशासन की परिभाषा मीनोब्रुक 3 का परिणाम है। ऑथर और कुछ बुक्स, कैडन जेराल्डी, इन्होंने लिखा था डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस टू द करंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द थ्योरी एंड practice. Robert Golombisky wrote the public administration as developing discipline. Henry Nicholas, public administration and public affair. Negro and Negro wrote modern public administration. Dwight Waldo ने NPO को न्यू रोमांटिसिज्म कहा था। ड्वेड वाल्डो ने एनपीओ को नया रोमांचवाद का नाम दिया। द टर्म डेलिब्रेट डेमोक्रेसी कॉइन्ड इन द मीनोब्रुक 3। शब्द विचार विमर्श लोकतंत्र मीनोब्रुक 3 में गढ़ा गया। फिनर एंड प्रेस्थस ने क्लैरिफाई किया स्टाफ को जनरल, टेक्निकल और ऑक्सिलरी स्टाफ के तौर पे। A virtual organization is a small core organization that outsources the major business function. एक आभासी संगठन एक छोटा कोर संगठन है जो प्रमुख व्यावसायिक कार्यों को आउटसोर्स करता है। To confer authority from one executive to the another is called delegation. एक कार्यकारी से दूसरे कार्यकारी को अधिकारी प्रदान करने का प्रत्यायोजन
कहा जाता है। अ ग्राफिक स्टोरी एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सुपरविजन इज प्रेजेंटेड बाय विलियमसन। विलियमसन ने पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाली एक ग्राफिक कहानी प्रस्तुत की थी। The issue of generalization is more complex in the concept and practice than is generally acknowledged. विलियम जे फेजलर का कहना है कि सामान्यीकरण का मुद्दा अवधारणा और व्यवहार में जितना माना जाता है उससे कहीं अधिक जटिल है। वैरेन बेनिस was the chief proponent of post bureaucratic theory. वैरेन बेनिस पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक थे। चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा लिखा गया कुछ किताब का लिस्ट है। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, organization and management, elementary condition of the business model. Books written by the Peter Drucker are The End of Economic Man 1939, The Future of Industrial Man 1942, Concept of Corporation 1946, The New Society 1950, The Practice of Management 1951, The Functioning Society 2002, The 5 Most Important Questions, ये लिखा गया था 2008 में, जिसको कि मरणोपरांत रिलीज किया गया। थिंकर और उनके कॉन्सेप्ट, हर्बर्ट साइमन ने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया। हेनरी फयोल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन। चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंस और ग्रैकुनाज ने स्पैन ऑफ अटेंशन का कॉन्सेप्ट दिया। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को एल्टन मायो ने कंडक्ट करवाया था। इसमें क्या क्या है, द ग्रेट इल्यूमिनेशन थ्योरी जो कि 1924 to 27 तक चला। रिले असेंबली, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको देख लीजिएगा। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट ये 1927 में स्टार्ट हुआ है। मास व्यूइंग प्रोग्राम, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम is 1928 to 1931. The bank wiring is started in the year 1931 and gone up to 1932. जॉन टी डॉर्से ने एडवोकेट किया था इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल को। एडवर्ड विडनर ने कहा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग द इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट। विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए नवाचार को अधिकतम करने से है। द की फार्मूला ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द इनिशियल लेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्सनल प्रोसेसर। और इसके लिए क्रॉप नाम का एक एक्रोनिम दिया गया जिसमें सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिसोर्स, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, 1 पी फॉर पर्सनल एंड अनदर पी फॉर प्रोसेसर। वी पन्नाइकर के द्वारा दिया गया था, पनंदाइकर। विकास प्रशासन का मुख्य सूत्र विकास और के प्रारंभिक अक्षरों में व्यक्त किया गया है और कार्मिक और प्रक्रिया के संगठन में माध्यम से प्रसाधन का समन्वय यानी CROPP के नाम से जाना जा सकता है, जिसमें कि सी फॉर समन्वय एंड संसाधन, संगठन, कार्मिक और प्रक्रिया है। इसमें इंस्टीट्यूशन और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है, इंडियन होम मिनिस्टर। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष भारतीय गृह मंत्री होते हैं। सेकेंड ARC रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एट सेंटर एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। द्वितीय ARC ने केंद्र और राज्य में क्रमशः केंद्रीय सिविल सर्विस सेवा प्राधिकरण और राज्य सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 29 मार्च 1954 को। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजिंग एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फंक्शन है। क्या है, स्थापित किया गया था 29 मार्च 1954 को। कार्मिक मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास का काम करता है और सार्वजनिक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक प्रगति का आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। थिंकर और उसके कुछ कमेंट किस सब्जेक्ट पे, जनरलिस्ट के सब्जेक्ट पे। फल्टन कमेटी रिपोर्ट ने कहा द गिफ्टेड लेमैन। ARC ऑन द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सेड इट एज द जनरल पर्पस सर्विसेज। रॉबर्ट प्रेस्थोस ने कंपेलिंग इनएडिक्वेसीज का नाम दिया। जवाहरलाल नेहरू ने एलिटिस्ट ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया। जेंडर बजट थ्योरी, इसमें ये ऑफर किया गया था ML विकर के द्वारा। ये एक रेडिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट है, वितरणात्मक पहलू है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक वेरिएबल एंड द बजट एक्टर्स परसेप्शन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें आर्थिक चरों और
बजटकर्ता की आर्थिक स्थिति को धारणा को ध्यान में रखा जाता है। एडॉप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑडिट सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय द 12th फाइनेंस कमीशन। 12वें वित्त आयोग द्वारा निष्पादन रेखा परीक्षा प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है। क्रिटिसिज्म इज वेरी लाइफ ब्लड ऑफ द साइंस, ये कहा गया कार्ल पियर्सन के द्वारा कि आलोचना विज्ञान का जीवन रक्त है। चैलेंजेस फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या चैलेंज है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का, लैक ऑफ ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने में स्वायत्तता का अभाव, कम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा, सस्टेनेबिलिटी, ओवर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, केंद्रीकृत संगठनात्मक संरचना और लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, कुशल कर्मियों की कमी। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें कि एम किया गया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसको लाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और ये 6 to 14 के एज ग्रुप को टारगेट करता है। वेलफेयर ऑफ पीपल इज द हाईएस्ट लॉ, ये कहा गया था टी हॉब्स के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1954 में, देखिए एक ही साल में 2 क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड। 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था सर दावजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इसको 1936 में, जो कि अब TISS के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैच करने के लिए पूछा गया इस क्वेश्चन में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1946 एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा 1949। ये सारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। Mixed scanning approach is given by MTI Adjioni on policy analysis. Chairman of the expert group for decouplised planning at the grassroots level was, ये दिया गया था V. रामचंद्रन के द्वारा। Hence we came to the end of this video. I think you are finding this is very helpful for your preparation and revision. If so, please do like, share and subscribe to this video and our channel. And for PDF, kindly refer to the description box where you can find the link to our Telegram channel named Administration Wise. Till then, keep revising. Thank you for the moment. And the next video will be on the December PYQ of 2014.